चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सवर्णरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28 अध्याय 8 श्लोक संख्या 28। सभी श्लोक रिपीट करिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्तेरितत्सर्वम् इदानीं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परमस्थानम् उपैति चादम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा अत्तेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानम् उपैति चादरम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा हत्येरि तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानम् उपैति चादरम्। हरे कृष्णा। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए ट्रांसलेशन और परपट। A person who expects the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitative activities. At the end, he reaches the supreme purpose. This verse is the summation of 7th and 18th chapter, particularly as the chapter deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many authorities and lineaments while living under his care. A
Brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglect to call the student for food that day, the student farts. These are some of Vedic principles for the observing brahmacharya. After the student study the Vedas under the master of a period from 5 of 20 years, he may become a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculator, but for the formation of the character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he also has to perform many sacrifices and strive for future increments. Then, after retired from household life, upon expecting the order of Vanaprastha, he undergoes several penances such as living in forests, dressing with tree barks, not shaving, etc. By carrying out the order of brahmachari, householder, vanaprastha, and finally sannyasa, one become elevated to the perfection stage of life. Some are then elevated to the heavenly kingdoms, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahmajyoti or the Vaikuntha planet or Krishna Loka. This is the path of outlined by Vedic literature. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all rituals of the different orders of life. One should try to understand the seventh and eighth chapter of the Gita not by scholarship or material speculation, but by hearing them in association with the pure devotee. Chapters 6 through 12 are the essence of the Gita. If one is fortunate to understand the Gita species, especially these middle six chapters in the association of devotee, then his life at once become glorified beyond all reasons. Sacrifice, charity, speculations, etc. One should hear the Gita from the devotee because at the beginning of the fourth chapter it is stated that the Gita can only be in devotional perfectly understood by devotee. Hearing the Gita from devotee, not from mental spectacle, is called faith through association of devotee. One is placed in devotional service, and by the service Krishna activities from past time, name, etc. become clear, and all misgivings are dispelled. Then once doubt are removed, the study of the Gita becomes extremely pleasurable, and one develops a taste and feeling of Krishna consciousness. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna, and that is beginning of the highest perfection stage of life, which prepares prepare the devotees transfers to Krishna's abode in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, where the devotee entered into eternal happiness. Hare Krishna Prabhuji. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद. धन्यवाद. प्लीज़ हिंदी में पढ़िए.
हरे कृष्णा, प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का उपसंहार है जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास जाना होता है। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मिक एवं मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस परीक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसे कि भगवद गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहन कर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अन्य अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धार्थ अवस्था को प्राप्त होता है। तब इन इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति चाहते हैं तो अधिक उच्च लोगों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ या कृष्णलोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग को स्वरूप रेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों को के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा सब सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विधिवत या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पत्र है। इनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की सम्मति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं यज्ञ दानों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता न समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े। मनोधर्मियों से नहीं, वह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है तो अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है। उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भवित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में मूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। तो ये श्लोक भगवद गीता के 8वें अध्याय
और 7वें अध्याय का संपूर्ण तात्पर्य है जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है। तो छठे अध्याय से आगे जो 6 अध्याय है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 6 अध्याय है भगवत गीता के जो मध्य के 6 अध्याय हैं, इनका खास महत्व है क्योंकि इसमें संपूर्ण गीता का जो रहस्य है वो छुपा हुआ है। और भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ने की यहाँ पे सूचना हमको मिलती है, क्योंकि इससे हम जब श्रवण करते हैं भक्तों के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, तो फिर हमें गीता का असली मतलब समझ में आता है। और अगर हम भक्तों की संगति में नहीं पढ़ते हैं गीता को, अगर हम मानसिक चिंतन से या मानसिक तर्क वितर्क करते हैं, अपनी अपनी खुद की बुद्धि लगाते हैं गीता को समझने में, तो गीता बहुत बड़ा रहस्य बन के रह जाता है और समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है और करना क्या है। तो भगवत गीता खास करके भक्तों के लिए है। जो दार्शनिक चिंतक है या जो मनोधर्मी हैं वो भी पढ़ते हैं गीता और वो अपने अपने मतलब निकालते हैं गीता में से, पर गीता का जो असली मर्म है या जो असली तात्पर्य है वो भक्तों के अलावा किसी और को समझ में नहीं आता है। और केवल एक भक्त ही इसको समझ सकता है और आगे समझा भी सकता है। तो भगवत गीता समझने के लिए भक्त के पास जाना चाहिए, ये यहाँ पे तात्पर्य है, ये मुख्य पॉइंट है यहाँ पे। भगवत गीता भक्तों को ही समझ में आती है और भक्तों से ही सुननी चाहिए, नहीं तो गीता का असली मतलब नहीं समझ में आएगा। भगवत गीता भक्तों के लिए बोली गई है, भक्ति देने के लिए बोली गई है, भक्ति का महत्व समझाने के लिए बोली गई है, और क्यों भक्ति करनी है और क्यों भक्ति करने से सारे समस्याओं का समाधान होता है। ये हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलता है। तो कई बार हम देखते हैं संसार में कई लोग होते हैं जो गीता का अलग मतलब निकालते हैं। कोई कहता है कर्म ही सब कुछ है, कोई कहता है ध्यान ही सब कुछ है, कोई कहता है ज्ञान ही सब कुछ है। पर गीता में स्पष्ट बताया है कि ना तो कर्म, ना ध्यान, ना ज्ञान, भक्ति ही सब कुछ। और भक्ति में जो लगा है उसको बाकी सारे फल मिल जाते हैं। वेद पढ़ने के, अध्ययन करने के, ज्ञान प्राप्त करने के, तपस्या करने का और दान दक्षिणा करने का, जितने भी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उसका जो फल है वो केवल भक्ति करने से अपने आप मिल जाता है, क्योंकि एक्चुअली भगवान भोगता है। इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं बार बार कि ना तो हम भोगता है, ना कोई और भोगता है, ना कोई व्यक्ति, ना कोई समाज, ना कोई देश, ना मानवता, ना ब्रह्मांड में कोई देवता, कोई भी भोगता नहीं है, सभी भगवान के दास। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अकेले वो ही सभी यज्ञों के भोक्ता है, अकेले वही ईश्वर है और बाकी सब उनके दास। यही बात प्रभुपाद जी ने बार बार समझाई है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात समझाते हैं जो हम भूल जाते हैं बार बार, कि कृष्णा ही ईश्वर है, कृष्णा ही भगवान है, कृष्णा ही भोक्ता है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं को भोग अर्पित करना है और प्रसाद रूप में फिर हम भोग को ले सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है बड़ा सरल है कि ईश्वर मालिक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृढ़ा कस्यचित् धनम। तो ये सिद्धांत बहुत ही सरल है, समझना इतना मुश्किल नहीं है। हर वस्तु का एक मालिक होता है और हर वस्तु का मालिक भगवान है, भगवान कृष्ण। तो इस बात को जो याद रखता है हमेशा कि भगवान कृष्ण मालिक है, वही सभी यज्ञों के स्वामी हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेवच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये कई बार भगवान ने गीता में बोला है। एक जगह पे भगवान बोलते हैं मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी, सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। अन्य जगह पे भगवान बोलते हैं मैं ही भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का स्वामी, सभी लोकों का मालिक मैं हूँ। पूरी सृष्टि का, कण कण का, हर अणु का और विराट
जगत का जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। तो एक छोटे से एटम से लेके इस पूरा ब्रह्मांड जो है, जो हम देख भी नहीं सकते, जो हम अनुभव कर सकते हैं कुछ हद तक, पर हम पूरी तरह देख नहीं सकते। भगवत गीता में अध्याय 15 में भगवान ने बोला है कि ये जो पूरा विराट जगत है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये वृक्ष की तरह है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक वृक्ष की तरह है, पर इसका आदि और अंत किसी को पता नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठ अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। तो भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। भगवान कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इतना विशाल ब्रह्मांड है कि आजकल वैज्ञानिक टेलीस्कोप लगा के, बड़े बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप लगा कर भी इसका आदि अंत देख नहीं सकते। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, कितना बड़ा है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, कहाँ तक इसकी पहुँच है, ये कोई देख नहीं सकता। इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सूर्य है, कितने चंद्रमा हैं, कितने लोक है, कितने प्लैनेट है, कितने कहाँ पे जीवन है, कहाँ पे कितना फैला हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है कोई देख नहीं सकता। और यहाँ पे एक एक जो अणु है, एक एक एटम है, उसको भी कोई देख नहीं सकता। तो सूक्ष्म भी, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वो भी भगवान द्वारा नियंत्रित है, और जो विराट है वो भी भगवान द्वारा नियंत्रित। तो चाहे सूक्ष्म कोई हो या कोई बहुत विराट हो, दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के नियंत्रण में है, और दोनों ही हम देख नहीं सकते। हम बहुत सूक्ष्म चीज़ों को भी देख नहीं सकते, हम बहुत विराट चीज़ों को भी देख नहीं सकते, और हम सिर्फ उसके बीच में देख सकते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र है, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच सकती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, वहीं तक हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी भगवान के नियंत्रण में है, और जो हम अनुभव नहीं भी कर सकते हैं, जो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो भी भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान हर वस्तु के नियंत्रक है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु के स्वामी हैं, और उसके बीच में भी जो कुछ है उसके भी वो स्वामी हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि इस घर का या इस गाड़ी का या कोई वस्तु है मेरे पास, उसका मैं स्वामी हूँ, उसका मैं मालिक हूँ, वो भी भ्रम है। जो हम छोटी चीज़ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भी हमारा नहीं है। और इसके परे जो बड़ा है, जो हम देख नहीं सकते, उसके भी स्वामी भगवान है। और जो एकदम छोटा है, जो हम देख नहीं सकते, वो भी, उसके भी स्वामी भगवान है। तो चाहे कोई चीज़ बहुत छोटी है या हमारे नज़र में आ सकती है या फिर हमारे नज़र के बाहर है, बहुत बड़ी है, तीनों ही अवस्था में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, न छोटा, न बीच का, न बड़ा। और आदि भी भगवान है, मध्य भी भगवान है, अंत भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो ये पॉइंट इतना आसान नहीं है समझना। सुनने में आसान लगता है, पर फिर से हमारे मन में माया आ जाती। हमें फिर से लगने लगता है कि चलो कम से कम ये घर तो मेरा है। बाकी हो सकता है पूरा ब्रह्मांड भगवान का है या छोटा अणु भगवान का है, बट ये घर तो मेरा है, या ये गाड़ी तो मेरी है कम से कम, या इस तिजोरी में जो पैसा रखा है वो तो कम से कम मेरा है। पर वो भी मेरा नहीं है, वो भी भगवान का है। तो हम कुछ देख सकते हैं या हम कुछ नहीं देख सकते हैं, सब कुछ भगवान का है। यहाँ तक कि मेरा खुद का शरीर भी हम पूरी तरह देख नहीं सकते। मतलब मैं अपना शरीर भी पूरी तरह देख नहीं सकता। इस शरीर के अंदर क्या है, कितने पुर्जे हैं, कैसे शरीर चल रहा है, ये भी मैं देख नहीं सकता। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान का है। भगवान ने ही रचना की है, भगवान ने ही जन्म दिया है। तो एक छोटे से शरीर, हम अपने खुद के शरीर को ही नहीं समझ सकते।
हमारा जो खुद का शरीर है उसमें भी सब कुछ कैसे चल रहा है ये भी हम नहीं समझ सकते। और इसके लिए भी बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बड़ी बड़ी मशीनें लगा के स्कैन करते हैं, एक्सरे निकालते हैं। उनको भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और वो फिर कभी कभी वो जवाब दे देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे भगवान के हाथ में है। तो चाहे ब्रह्मांड है या शरीर है, कोई भी विज्ञान है, ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हम एक्चुअली किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते। ये सत्य भगवत गीता में बहुत स्पष्ट बताया है। तो हमें कभी भी स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ यज्ञ के लिए करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है सब कुछ भगवान के लिए करना है। भगवान स्वामी, हम लोग दास, भगवान मालिक, हम लोग सेवक। ये दो लाइनें जो समझ जाता है वही असली ज्ञानी है, नहीं तो सभी अज्ञानी है। जो भगवान को मालिक नहीं मानते हैं, जो खुद को मालिक मानते हैं और अपनी असली जो स्थिति है सेवक की, हम सबकी असली स्थिति है कि हम सब सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं और बन भी नहीं सकते। ना अभी बन सकते हैं ना भविष्य में बन सकते हैं। हम लोग कभी भी मालिक नहीं बन सकते। हमारी असली स्थिति है कि हर वस्तु का मालिक भगवान है और हम सब भगवान के दास, हम सब भगवान के सेवक। तो हमें सब कुछ यज्ञ के लिए करना है, हमें सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करना है। यही सत्य है। ये सत्य हनुमान जी को समझ में आ गया था कि राम स्वामी है, मैं सेवक हूँ, और अभी भी वो उसी सत्य पे चल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी चिरंजीव है, वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी असली स्थिति पता है कि वो कौन है। और प्रभुपाद जी को भी पता है कि वो कौन है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान के सेवक हैं। तो ये सत्य जिसको पता है और जो इसको पालन करता है वही ज्ञानी है। जो इस सत्य को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि भगवान मालिक है, या जान के भी वो अनजाना बनता है। अब ये जो सत्य है ये सभी जानते हैं, पर फिर भी लोग अपना निजी उद्योग शुरू करते हैं कि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, ये मेरा पर्सनल दुकान है, ये मेरा पर्सनल कंपनी है, ये मेरी प्राइवेट कंपनी है, ये मेरा प्राइवेट घर है, ये मेरा प्राइवेट कमरा है, ये मेरी प्राइवेट गाड़ी है। सत्य जानने के बाद भी हम ऐसी मूर्खता करते हैं कि ये मेरा प्राइवेट है। और इसको कहते हैं उद्योगवाद, कैपिटलिज्म। जो आज के समय में हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सब कुछ बेचती जा रही है कि निजी उद्योगपतियों को सब कुछ बेच डालो और पैसा कमाओ, बस किसी तरह से पैसा लेकर आओ, अपनी फ़ोटो लगाओ चारों तरफ, हर जगह पे हमारा बैनर होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। उसके लिए उद्योगपतियों से पैसा लो, उनको सब कुछ बेच डालो। तो ये आज के समय में भी ये सब राक्षस हैं, इनको पता नहीं है कि भगवान मालिक है। हम ना तो किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, ना तो किसी चीज़ को बेच सकते हैं, पर फिर भी ये सब निजीकरण करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ निजी चीज़ें हैं, हमारा निजी ये संपत्ति है, और हम इसको भोग करने वाले हम भोक्ता है। तो क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो दिखावे का ज्ञान है। एक्चुअल जो बीच के जो 6 अध्याय है, अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें स्पष्ट बताया है कि हम कौन हैं। हम भगवान के दास, हम भगवान के सेवक। तो ये भक्तों की संगति में ही समझ में आता है। आप किसी पॉलिटिशियन का भाषण सुनेंगे, आप किसी उद्योगपति का भाषण सुनेंगे, आप किसी बिजनेसमैन का भाषण सुनेंगे, या आप किसी निर्विशेषवादी का भाषण सुनेंगे, मायावादी का भाषण सुनेंगे, तो आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी जो यहाँ पे बताई गई है। पर ये बातें यहाँ पे जो लिखी है ये प्रभुपाद जी ने लिखी है, श्रीला प्रभुपाद जी ने। तो श्रीला प्रभुपाद जी कौन है? श्रीला प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट यहाँ पे ज्ञान दिया है कि हम कौन हैं। हम भगवान के दास, और भगवान हर वस्तु के मालिक। तो इसकी ज़रूरत है आज के समय में। इसी से हम बच पाएंगे, इसी ज्ञान से हम बच पाएंगे। नहीं तो चारों तरफ राक्षस हैं। कोई उद्योगपति है, कोई निजी अपना व्यवसाय चला रहा है, कोई राजनीतिज्ञ है,
कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई वोट कमा रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस। पर भगवत गीता ऐसे राक्षसों से सुन के हमको नहीं समझ में आई। अब जो राक्षस है वो कहते हैं भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट, मतलब भगवत गीता में भी वो धंधा करते हैं कि इससे धंधा कैसे बढ़ाएं, इससे मैनेजमेंट कैसे करें, इससे पैसा कैसे कमाएं, तो वो राक्षस। और कई ऐसे राक्षस है जो भगवत गीता को लेके राजनीति करते हैं, तो वो भी राक्षस है, क्योंकि वो भी गीता को समझ नहीं पाते। तो भगवत गीता ना तो हमें कोई बिजनेसमैन समझ जा सकता है, ना कोई राजनीतिज्ञ समझ जा सकता है। भगवत गीता हमको सिर्फ और सिर्फ भक्त समझा सकता है। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही गीता को समझ सकता है और समझा सकता है, और हमें वहीं से उसको समझना है। अगर हम वहाँ से गीता समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी, फिर गीता पढ़ने का लाभ भी होगा, भक्ति मिलेगी, भगवान की सेवा मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, जीवन को एक उद्देश्य मिलेगा। अभी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है कि जीवन जीना क्यों है। पर भगवत गीता पढ़ के, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जीवन जीने का उद्देश्य है कृष्णा का नाम लेना, कृष्णा की भक्ति करना और कृष्णा की सेवा करना। ये एकदम क्लियर हो जाता है कि मैं कृष्णा का दास, अभी भी आगे भी हमेशा के लिए मैं कृष्णा का दास। तो ये एकदम क्लियर हो जाता है, तो फिर सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है, सारी जो मन में दुविधा है, परेशानी है, सब खत्म हो जाता है। तो ये इसका तात्पर्य है, हमें भक्ति करनी है और भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरे को एक डाउट था, मैं अभी न्यू ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जी आई वाज वॉन्डरिंग कि हमें क्या नियम बनाना चाहिए। क्या जैसे अभी हम दोपहर में 12 बजे और शाम में 4 बजे और रात में 8 बजे पढ़ते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो हम लोग इतना ही मतलब सफिशिएंट है, या जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो हमें अपना नियम खुद बनाना चाहिए, ऐसा भी कुछ करना चाहिए? शुड वी टेक नोट? what is the correct procedure of studying Bhagavad Gita? जी, भगवत गीता का प्रोसीजर ये है कि दिन में कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, सुबह, दोपहर को, शाम को। तो इसीलिए सुबह हमने ट्राई किया था, बट सब लोग बिज़ी होते हैं सुबह। तो जी सुबह सुबह हम लोग मंगल आरती करते हैं, फिर चैंटिंग सेशन होता है सुबह 5:30 को। तो आज अनफॉर्चुनेटली आज ऑनलाइन नहीं हो पाया, बट हम लोग रेगुलरली करते हैं, रोज़ सुबह 5:30 को हम ग्रुप में भी मैसेज डालते हैं कि तो सो प्रभु एक्चुअली, जी वाला नंबर ऐड कर देंगे ग्रुप पे क्या? मेरे को ग्रुप में ऐडेड नहीं हूँ। हाँ शायद आपको मैसेज आता होगा, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया था। ऐडेड वो शायद नहीं है प्रभु जी, आपके पर्सनल मैसेज आता है रिगार्डिंग द क्लासेस हाँ हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम अटेंडिंग। हाँ हाँ, तो पर्सनल मैसेजेस के लिए ब्रॉडकास्ट बनाया हमने। अभी अच्छा ठीक है। ग्रुप में हम लोग ने अभी थोड़ा रूल चेंज किया है। ग्रुप ओके में हम लोग जो रेगुलरली क्लासेस में आते हैं, सत्संग में आते हैं, संडे को आते हैं, जिनको राइट। हम थोड़ा, हम जिनसे ज़्यादा फेमिलियर है, हम उन्हीं जी को ग्रुप में ऐड करते हैं, और नहीं तो हम ब्रॉडकास्ट में पर्सनल मैसेज भेजते हैं। ओके ठीक तो है प्रभु जी। हम इवेंचुअली आपको ऐड कर देंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है क्योंकि प्रभु हमारी, जी, सो शुड वी टेक नोट्स? जैसे हम हिंदी इंग्लिश में जैसे भी हमें कन्वीनियंट हो हम पढ़ते हैं, तो हाँ, क्या हमें नोट्स नोट्स लेने चाहिए, अपने खुद के यस, बनाने चाहिए? यस, नोट्स बनाने चाहिए। हर लेक्चर में, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी लेक्चर होते हैं, संडे को भी 1 से 4 होता है, उसमें भी क्लास होती है, और ये ऑनलाइन तो 3 क्लासेस होती है डेली। तो इसमें जी आप जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे 1 करो, 2 करो या 3 करो या सभी क्लास करो, आप जब भी जी आप क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें जो भी पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए और उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं उनकी बुक्स में। तो सारे पॉइंट्स हमको याद जी नहीं रहते हैं। एक पॉइंट याद रहता है पर दूसरा हम भूल जाते हैं, बट एक्चुअली सारे ही पॉइंट्स को याद रखना इम्पोर्टेंट।
तो क्योंकि तभी हम एक आइडियल डिवोटी बन पाएंगे, क्योंकि कृष्णा भगवान का जो टीचिंग्स है वैसे तो सिंपल है बट मल्टीफैसेटेड है। वो हर आपके लाइफ के हर फेज़ में और हर एस्पेक्ट में वो एप्लीकेबल है। तो कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि भगवत गीता कैसे हमारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि गीता तो बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है लाइफ में जो हम स्पेयर टाइम में करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। गीता हमारी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली लाइफ का मतलब ही भगवत गीता है। भगवत गीता के बिना कोई लाइफ ही नहीं है, और गॉड के बिना, कृष्णा के बिना कोई लाइफ ही नहीं है। इट इज़ आवर बॉडी इज़ अ डेड बॉडी, ऑलरेडी इट इज़ डेड। हम आत्मा है और कृष्णा परमात्मा है, और कृष्णा हमारी बॉडी को और आत्मा को चला रहे हैं। तो एक्चुअली विदाउट कृष्णा लाइफ है ही नहीं, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो एक्चुअली इसको हमें लाइफ का मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ये हमारे लाइफ का मेन टारगेट है भगवत गीता। तो सुबह उठने से लेके दिन में कम से कम आपको 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल्स पे, और उसके पॉइंट नोट डाउन करके उस पर थिंकिंग करना चाहिए। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है तो उसको कृष्णा में और गीता में लगाना चाहिए, और चैंटिंग करना और गीता पढ़ना और उस पर थिंकिंग करना। ये अगर आप 24 आवर्स कर पाएंगे देन यू विल बिकम वेरी परफेक्ट। फिर आपका माइंड डिविएट नहीं होगा माया की तरफ या इल्यूजन की तरफ, और आपका माइंड कृष्णा में ही लगा रहेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी सब कुछ करके दे दिया है, हमें बस उसको फॉलो करना है। मॉर्निंग में, फिर दिन में 3 बार कम से कम, और थ्रू आउट द डे, इवन सोते वक्त इसका ही थिंकिंग करना है, और सुबह उठते फिर से यही थिंकिंग करना है। तो एक्चुअली गैप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस में कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए। और जितना हमको रिक्वायर्ड है खाने के लिए, सोने के लिए, या बाकी जो दिन के हमको कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े धोने हैं वगैरह वगैरह, जो भी रेगुलर हमारे कंपलसरी चीज़ें हैं, वो उसको करने के बाद जो आपको टाइम मिलता है उसको टोटली कृष्णा को डिवोट करना है, और इस कॉन्शियसनेस को कभी ब्रेक नहीं करना है। तो यही, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये नॉन स्टॉप होता है, विदाउट ब्रेक होता है ये। राइट। प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल और था। जी सॉरी, एकदम न्यू डिवोटी है इसलिए पूछना चाह रहे हैं। जी। जैसे हम स्कूल में नोट्स वगैरह लेते थे तो हमने एक नोटबुक सेपरेट रखते थे करने के लिए, बट कभी कभी हम इसमें मार्किंग भी कर लेते हैं। तो क्या हमें भगवत गीता में पेंसिल या मार्कर या कुछ यूज कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट इज मतलब इट इज नहीं, पार्ट ऑफ कृष्णा ओनली। वैसे नहीं करना चाहिए। अब सेपरेटली नोटबुक में करेंगे तो बेटर है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो आज हमारा टाइम यहाँ पूरा होता है, हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।